A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last video we discussed a very important topic, that is a rules for generalizing. In this topic, you can see that there are basically two rules for generalizing, that is a traditional rules of generalizing and modern rule of generalizing. Under the trading rules of generalizing, account can be classified into the two categories, that is a personal account and impersonal account. Impersonal account, which are related to the natural as well as the artificial personal account, and the rule of the personal account is debit the receiver and credit the giver. The number second types of the account, that is an impersonal account. Impersonal account can be classified into the two categories, that is a real account and nominal account. Real account are those accounts which are related to the property or fixed assets, whether it is a tangible or intangible. And the rule of the real account according to the double entry system is debit what comes in, credit what goes out. And the second type of the impersonal account, that is a nominal account. Nominal account is an account which are related to the income, expense, profit and loss. And the rule of the nominal account is debit the expenses and losses and credit the incomes and profits. And according to the modern rule of generalizing, you know very well, the account can be classified into the five categories. The first one is the assets account, liabilities account, capital account, income account, and expense account. Such types of account has its own balance, like a debit balance, either it possesses a credit balance. तो अगर हम एसेट्स अकाउंट की बात करें तो एसेट्स अकाउंट डेबिट बैलेंस को डिनोट करता है, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस को डिनोट करती है, कैपिटल भी क्रेडिट को डिनोट करता है, इनकम क्रेडिट को डिनोट करता है और एक्सपेंस जो है वो डेबिट को डिनोट करता है। यानी अगर हम समरी क्रिएट करें सो वी कैन सी दैट एसेट्स अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट हैव अ सेम नेचर। एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो माइनस। उसी तरह से एक्सपेंस जब इनकट करती है कंपनी तो उसे डेबिट करती है, और अगर एक्सपेंस रिड्यूस होता है कंपनी का तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। और रही बात बाकी सारी की, कैपिटल की, लाइबिलिटीज की और इनकम्स की, इनका सेम नेचर होता है। यानी अगर ये सारी आइटम्स जो होते हैं इंक्रीज होते हैं तो इनको क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन नाम से ही क्लियर है, इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स एक हिंदी में जिसे कहते हैं समीकरण। एक इक्वेशन प्रेजेंट करेंगे। इन द क्लास 12th 9th आप लोगों ने ऑलरेडी इक्वेशंस को डिस्कस किया है। उसी तरह से अकाउंटिंग में जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका एक बेटर इक्वेशन होता है, और उस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये पहला न्यूमेरिकल पार्ट होता है आपके पूरे क्लास 11 चैप्टर का। सो लेट्स वी डिस्कस व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन एंड हाउ वी सॉल्व द अकाउंटिंग इक्वेशन, how we will record the transaction into the books of account with the help of the accounting equation. So please note down in your copy what is accounting equation. Okay, so one by one please note down it. Accounting equation. So what is accounting equation? Please note down it in your copy. A mathematical expression which shows a mathematical expression which types of expression? Mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal is known as accounting equation. So basically what is accounting equation? Accounting equation is a mathematical expression. It is a mathematical expression which shows that, जो ये दिखाता है कि assets and liability फर्म की, ये फर्म या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो assets and liability होती है
वो दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, is known as accounting equation. Okay, and the accounting equation are, please note down, कुछ accounting equations हैं जिनको मैं आपको बता दूं. The basic accounting equation होता है that is total assets equals to capital, that is a total capital plus total liability. So what is the basic accounting equation? Basic accounting equation is assets equals to capital plus liability. इट मीन्स जब किसी फर्म की टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करना है या टोटल एसेट्स को हमें फाइंड आउट करना है, तो इट मीन्स द टोटल कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटी. इसे हम और तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटी. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये भी कह सकते हैं हम लोग. और हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ये भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं. सो बेसिकली अगर आप देखो तो टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटीज, एज वेल एज द कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल, जब हम इसका साइड चेंज कर देंगे. ओके, so you can see that total assets equal to total capital plus total liability. और इसी इक्वेशन को अगर हम चेंज कर दें तो ये भी बन सकता है कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल. और एक और इक्वेशन इसी के हेल्प से बन सकता है, वो है एसेट्स माइनस कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू जीरो. ये भी हम कह सकते हैं कि अगर टोटल एसेट्स में से टोटल कैपिटल को माइनस कर दें एंड टोटल लाइबिलिटीज को भी माइनस कर दें, तो वी फॉर्म द अनदर थ्री इक्वेशंस. सो यू कैन सी दैट द मेन इक्वेशन आर एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और इस इक्वेशन के हेल्प से हम और सारे इक्वेशंस को भी क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज द बैलेंस शीट इक्वेशन. ये भी आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द बैलेंस शीट इक्वेशन. सो अगर आपसे एग्जाम में पूछे व्हाट इज बैलेंस शीट इक्वेशन, सो यू विल राइट द सेम इक्वेशन. that is a mathematical expression which shows the assets and liability of a firm are equal is known as the accounting equation. अब सर इसको प्रूफ करके दिखाइए. हाउ वी कैन सी दैट, हाउ वी कैन से दैट कि ये इक्वेशन करेक्ट है. तो उसके लिए हम आपको एक एग्जांपल्स की तरह से हेल्प करते हैं. ठीक है, एग्जांपल्स के हेल्प से हम इस इक्वेशन को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. एग्जांपल्स आर, ओके, ये आपका मेन इक्वेशन. ठीक, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दैट इज राम started business with cash rupees 1 lakh and loan rupees 50,000. राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए के कैश से और 50,000 रुपीज के लोन से. प्लीज लिसन केयरफुली. कह रहा है कि राम एक बंदा है, एक आदमी है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, किसने 1 लाख रुपए के कैश से और 50,000 रुपीज के लोन से, दो चीजों से स्टार्ट किया, कैश से और लोन से. सो अगर हम इसका इफेक्ट देखें अपने कैपिटल इक्वेशंस पे, कैपिटल इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. ठीक है, तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कितना लगाया 1 लाख रुपए और लोन कितना लगाया 50,000. तो अगर आप इस पूरे इक्वेशन को देखो तो फर्म के पास कितना पैसा आया, फर्म ने 1 लाख रुपए कैश लगाया और लोन कितना लिया 50,000 रुपए, यानी गए और लोन ले लिया, बैंक गए और बैंक से लोन ले लिया. तो बैंक से लोन लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए. व्हेन वी आर गोइंग टू द बैंक एंड टेक अ लोन, तो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई कि मुझे वो पैसा पे करना है, सो इट इज अ लाइबिलिटी. एज वेल एज मेरे जेब में 50,000 आए हैं तभी तो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है. यानी दो चीजें होंगी ना, एक मेरे पास पैसा आया होगा और एक मेरे ऊपर क्या क्रिएट हुई होगी, लाइबिलिटी क्रिएट हुई होगी. और कैश तो आया ही आया,
यानी कि एसेट्स में कैश आया कितना रुपए, 1 लाख रुपए जो मैंने खुद से लगाया और 50,000 रुपीज जो बैंक से लोन लिया, यानी टोटल कैश कितना आया 1,50,000। और यू नो वेरी वेल बिजनेस में जब भी हम कोई पैसा लगाते हैं कैश में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। और मेरे ऊपर बैंक का लोन कितना है 50,000। सो यू कैन सी दैट द इक्वेशन आर 1,50,000 cash equals to 1 lakh rupees as capital and 50,000 from the loan। एक बार फिर से समझिए, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से और लोन लिया 50,000 रुपए, तो टोटल बिजनेस के पास पैसा कितना आया, 1 लाख रुपए खुद का पैसा आया, 50,000 रुपए बैंक से लोन लेकर आया, तो टोटल पैसा कितना आया बैंक के पास, अरे सॉरी बिजनेस के पास 1,50,000 रुपए। उसमें कैपिटल कितना है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो बिजनेसमैन खुद बिजनेस में लगाता है, अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द ओनर एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है इट विल बी नोन एज द कैपिटल। ओके, so this is the meaning of first equation as you can see that on your screen। सर एक एग्जांपल और देकर समझाइए इसी को। चलिए मैं इसे इक्वेशंस को और थोड़ा और इजीली करता हूं। फर्दर राम repay the loan to bank of ₹10,000। कुछ समय बाद राम ने अपना जो लोन था वो बैंक को लौटा दिया, कितना रुपए लौटा दिया, 10,000 रुपए लौटा दिया। अब जब बैंक से लोन लिया था तो पैसा आया था जेब में, पॉकेट में 50,000 रुपीज आ गया था, और फिर उसमें से मैंने 10,000 रुपीज निकाल के लौटा दिया। तो दो चीजें हुई, एक मेरे ऊपर से जो लाइबिलिटी थी, जो मेरे ऊपर एक भार था कि मुझे पैसा लौटाना है, वो थोड़ा कम हो गया। दूसरा मेरे पास से क्या गया, पैसा था ना 50, और वो उठ के निकल के चला गया। यानी कि अगर हम इस समय, अभी तक हमारा एसेट्स कितना चल रहा था, अभी तक हमारा एसेट्स पुराने इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1,50,000 रुपए, कैपिटल ₹1 लाख एंड लाइबिलिटी 50,000। अब हमने फर्दरली क्या किया, लोन पे कर दिया, लोन को रीपे कर दिया। तो जब लोन रीपे करेंगे तो यू नो वेरी वेल 10,000 रुपीज मेरे पास से पैसा कम होगा, कैश कम होगा, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और मेरी लाइबिलिटी अभी 50,000 थी, अब कितने से कम हो जाएगी, 10,000 रुपीज से हो जाएगी। सो अगर अब इफेक्ट देखें तो क्या हो जाएगा, 1,50,000 में से 10,000 कैश गया, 1,40,000, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 लाख रुपीज, एंड लाइबिलिटी अब क्या हो गई होगी, 10,000 रुपीज से कम हो गई होगी। सो यानी हमारी लाइबिलिटी कितनी हो गई होगी, 40,000। सो यू कैन सी दैट 1,40,000 इक्वल्स टू 1,40,000। So it is proved that accounting equation is true and it is applicable in each and every situation, is that assets equals to capital plus liability। Okay, so our next question is prepare accounting equation from the following transactions। आपको मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स दूंगा, उस ट्रांजेक्शन की हेल्प से आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म करना है। कुछ ट्रांजेक्शन्स, जैसे मैं आज पहला क्वेश्चन है तो मैं ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं लूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। द क्वेश्चंस आर, फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 lakh। The second transaction will be purchase goods for cash, ₹20,000, and on credit, and ₹30,000 credit। Okay, third transaction will be goods sold costing, यानी गुड्स जो मैंने सोल्ड किया उसकी कॉस्टिंग थी 10,000, एंड
फॉर कैश, यानी कि गुड्स जो कॉस्टिंग थी 10,000 उसे फॉर कैश में सेल किया गया, एंड costing rupees 15,000 on credit at 20% प्रॉफिट। बहुत इजी है, ज्यादा बड़े ट्रांजेक्शन मैंने लिए हैं इस बार। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें 3 ट्रांजेक्शन दिए हैं 3 मार्क्स के, और कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन की हेल्प से आप फ्रेम करो अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले टॉप में लिखोगे हेडिंग दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन को दिखा दोगे कि सर मैं ये सॉल्यूशन कर रहा हूं, और उसके बाद कॉलम्स बनेंगे। कॉलम्स पहला रहता है डेट, फिर ट्रांजेक्शन्स, पूरे ट्रांजेक्शन सॉल्यूशन में लिखने पड़ते हैं कि किस ट्रांजेक्शन्स का आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन करने जा रहे हो। थर्ड कॉलम होता है एसेट्स का, फोर्थ कॉलम होता है आपका लाइबिलिटीज का या कैपिटल का मान लो, और उसके बाद होता है लास्ट कॉलम दैट इज लाइबिलिटीज। ओके, सो इतने कॉलम्स होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यू नो वेरी वेल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एंड ट्रांजेक्शंस जो होते हैं उसमें आपको एग्जाम में पूरा ट्रांजेक्शंस लिखना पड़ेगा। जैसे ये पूरा ट्रांजेक्शन लिखना पड़ेगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पूरा ट्रांजेक्शन कॉपी करना पड़ेगा। और उसके बाद एसेट्स में कुछ हेड्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस जैसा रहेगा वैसे हेड्स क्रिएट होंगे। तो जैसे पहला डेट है आपका, द फर्स्ट डेट इज, अगर आप फर्स्ट डेट देखो तो ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। तो आप लिखोगे यहां पे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, पूरा वर्ड लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। पूरा लिखने के बाद अब उसका इंपैक्ट देखोगे। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, अब आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश से तो कौन कौन सी चीजें इफेक्ट होंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। When we started business with cash, so in this situation हमारे पास क्या आएगा? कैश। सो एसेट्स में कैश कॉलम डेवलप हो जाएगा। कौन सा कॉलम? कैश कॉलम। यानी मेन कॉलम इज एसेट्स, सब कॉलम इज कैश, और कैश में जाकर कितना ऐड कर दोगे? दैट इज 1 लाख। और कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल, तो कैपिटल में कितना ऐड हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज, क्योंकि दो ही जगह ऐड होगा, एसेट्स के कैश में ऐड होगा, और बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट विल बी नोन एज द कैपिटल, बिकॉज यू नो वेरी वेल जब बिजनेसमैन बिजनेस में कोई पैसा इंट्रोड्यूस करता है, लगाता है, तो इट विल बी नोन एज द कैपिटल। क्लियर? इज दैट क्लियर? सो इसका इफेक्ट कहां पड़ा? कैश में 1 लाख रुपए ऐड, और कैपिटल में 1 लाख रुपए अगेन ऐड हो गया। ओके, नाउ the second transaction will be, as you can see that on your screen, purchase goods for cash। आपने गुड्स परचेस किया कैश में 20,000 एंड 30,000 ऑन क्रेडिट। जब आपने गुड्स परचेस किया तो आपको कैश में कितना पैसा देना पड़ा? 20,000 रुपए। क्रेडिट में कितना देना पड़ा? 30,000 रुपए। तो जब आप गुड्स परचेस करोगे ना तो आप लिखोगे यहां पे पूरा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन फॉर कैश एंड क्रेडिट। तो पूरा यहां सेंटेंस लिखकर कहां तक लिखोगे? क्रेडिट तक का ट्रांजेक्शन कॉलम में। फिर गुड्स परचेस किए कैश में, तो गुड्स जब परचेस करोगे तो कितने का गुड्स परचेस किया? टोटली कितना परचेस किया? 20,000 कैश का, 30,000 क्रेडिट का। तो टोटल आपके पास क्या आया? स्टॉक। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्टॉक से नाम। तो स्टॉक में कितना ऐड होगा? 20 प्लस 30। टोटल स्टॉक आपने कितना परचेस किया? 50,000। ओके,
यानी आपने 20,000 कैश में परचेस किया, 30,000 क्रेडिट में परचेस किया, यानी टोटल स्टॉक कितना परचेस किया, 50,000। अब 50,000 रुपीज का सामान गए खरीदने, उसमें से 20,000 रुपए कैश में दिया और 30,000 रुपए क्रेडिट पे। तो 20,000 रुपए कैश में दिया, इसका मतलब आपका 20,000 रुपए पैसा चला गया। तो यानी कैश में से कितना माइनस हो जाएगा, 20,000 रुपीज माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका पेमेंट कर दी। लेकिन 30,000 आपके ऊपर क्या है, क्रेडिट है। 30,000 रुपीज क्या आपके ऊपर क्या है, क्रेडिट है। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी। और जब हम क्रेडिट पे कोई सामान खरीदते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं, इट विल बी नोन एज द क्रेडिटर्स। You know very well what is the definition of the creditors. The definition of the creditor will be a amount or goods the person from whom goods purchase on credit. जिस बंदे से हम गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। एंड इट इज अ लाइबिलिटी। ये क्या होती है आपकी, लाइबिलिटी। एंड लाइबिलिटी में कौन सा नाम है, क्रेडिटर्स। कितने रुपए का आपने क्रेडिटर्स पे परचेस किया, 30,000। अब आप मैच कराओ, एकदम केयरफुली मैच कराओ। तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ा, इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ये पड़ा कि 20,000 कैश में से माइनस हुआ, 50,000 स्टॉक में प्लस हुआ, और 30,000 आपकी लाइबिलिटी में प्लस हुआ। लाइबिलिटी के किस हेड में, क्रेडिटर्स के हेड में। थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 10,000 फॉर कैश। आपने गुड्स सोल्ड किया 10,000 रुपए कैश में। तो ये पहले इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि उसके बाद लगा एंड, थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करेगा इसके बाद वाली लाइन। तो पहले आपने इसको ट्रांजेक्शन हेड कर दो कि थर्ड का ए आपने पहले सॉल्व कर लिया, गुड्स कॉस्टिंग फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आप कर सकते हो, आप चाहो तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी आपकी स्टार्टिंग है, दैट्स वाई मैं एक साथ पूरा ट्रांजेक्शन नहीं बता रहा हूँ थर्ड वाला। तो गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर कैश। तो अब आप गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड किया कितने का था, 10,000। तो 10,000 का जब गुड्स सोल्ड करोगे तो अब आप खुद सोच लो, जब आप गुड्स बेचोगे तो पैसा आएगा ना। और कितने का गुड्स किया, 10,000। तो 10,000 कहाँ से माइनस हुआ, स्टॉक से। और कैश कितना आया, 10,000। और कहीं इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन when you goods sold costing rupees 15,000 on credit, अब आपने गुड्स सोल्ड किया है, लेकिन 15,000 रुपीज का गुड्स सोल्ड किया, वो भी किस पे, क्रेडिट पे। तो यू नो वेरी वेल, जब गुड्स क्रेडिट पे परचेस करते हैं तो क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और जब सोल्ड करते हैं तो क्या बोलते हैं, डेटर। एंड डेटर इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स। डेटर किसका पार्ट होता है, एसेट्स का। तो एसेट्स में आप बी वाले का क्या करोगे, जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है कॉस्टिंग रुपीज से प्रॉफिट तक, ओके। तो कॉस्टिंग रुपीज 15,000 ऑन क्रेडिट एट 20% प्रॉफिट। इसका जब आप सॉल्यूशन यहाँ नोट डाउन करोगे, तो पहले आपका गुड्स कितने का था, 15,000। तो कितने का गुड्स किया आपका, 15,000 रुपीज का। किस पे सोल्ड किया, क्रेडिट पे। कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा आप लोग। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी आपकी 15,000। उसको सोल्ड किस पे किया है, प्रॉफिट पे कि लॉस पे, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट से वैल्यू बढ़ जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है। कितना परसेंट प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट। तो 15,000 का 20% प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000। सो सेल कितने में किया आपने, 18,000 रुपीज। यानी आपने 15,000 रुपए का सामान, 15,000 रुपीज की वैल्यू का गुड्स आपने कितने पे सोल्ड कर दिया, 18,000 रुपीज पे। और 18,000 रुपीज में 18,000 रुपीज में अगर आप देखोगे, तो 18,000 रुपीज आपकी क्या बन गए, डेटर। यानी आपने गुड्स बेचा 15,000 रुपीज का, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ आपको, मतलब कितने में सेल किया, 18,000। क्योंकि यू नो वेरी वेल, व्हेन यू सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आप गुड्स सोल्ड करते हो क्रेडिट पे, तो आपके डेटर इंक्रीज कर जाते हैं। तो डेटर में आपने 18,000 पे। अब सर का आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर 15,000 रुपीज का सामान हमने 18,000 रुपए में बेच दिया, 3,000 हमको क्या हुआ, प्रॉफिट। और जब भी हमको कोई प्रॉफिट होता है ना, ये याद रखिए, एकदम दिमाग में रख लीजिए, जब आप अकाउंटिंग के विषय में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है या कोई इनकम हो रही है या कोई एक्सपेंस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, कैपिटल पे। तो प्रॉफिट कितना हुआ था, 3,000। अगर प्रॉफिट हुआ तो 3,000 ऐड कर दीजिए, लॉस होता तो 3,000 माइनस होता,
इनकम होता तो ऐड होता, एक्सपेंस होता तो सारा खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन सबको टोटल कर लें। वन बाय वन सबको क्या करेंगे, टोटल। तो जब हम कैश को टोटल करेंगे तो आएगा 1,00,000, 10,000, 20,000, ये आएगा 90,000। इसको ऐड करो तो कितना आएगा, 50,000 माइनस 10, 40, 40 में 15 गया, दैट इज 25, एंड दिस इज 18,000। इसको ऐड करो, 1,00,000 प्लस 3,000, 1,03,000, एंड दिस इज 30,000। अब आप अपने आंसर को चेक करने के क्या करोगे, इन तीनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, तो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज का ऐड होगा 1,33,000, और एसेट्स का भी टोटल इतना ही आना चाहिए, 9 to 11, 12 and 13, yes, 1,33,000. So this is your answer. Answer will be a cash 90,000, stock 25,000, debtor 18,000, capital 1,03,000, credited 30,000. So you can prove the question, that is the assets equals to capital plus liability. Assets is 1,33,000, capital is 1,03,000, liability is 30,000. So the assets is 1,33,000 equals to capital plus liability का total 1,33,000. So let's we take the few transaction, and with the help of you as well as for me, with the help of me, please tell me which account is to be debited and which account is to be credited. This is a revision types of question. जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए और कौन सा क्रेडिट होना चाहिए। So the first transaction is rent paid rupees 1,000. So tell me which account is debited and which account is credited. Think. When we rent paid rupees 1,000. So first of all you categorize rent paid is a income or expense. So it is an expense, you know very well. And जब कोई चीज एक्सपेंस होती है तो क्या करते हैं, ओके, सो रेंट पेड करेंगे, सो योर आंसर इज करेक्ट, दैट इज रेंट अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। यू नो वेरी वेल, जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट होता है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट दी एक्सपेंस। तो रेंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, जब हम रेंट पे करेंगे तो यहाँ हमारे पास से जेब से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल, जब मनी जाती है तो कैश कम होता है। एंड इन केस ऑफ द कैश डिक्लाइनमेंट, जब कैश कम होता है तो उस सिचुएशन में कौन सा रूल अप्लाई होता है, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या जाएगा हमारे पास से, कैश। लेट्स वी टेक द वन मोर एग्जांपल। द एग्जांपल इज गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम फॉर कैश रुपीज 1,000। हमने गुड्स परचेज किया श्याम से कैश में 1,000 रुपए का। So in this situation, which account is to be debited and which account is to be credited? Please watch carefully. Think when we purchase the goods, जब मैं श्याम से गुड्स परचेज करूंगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। सो द करेक्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, दैट इज परचेज अकाउंट। एंड एज वेल एज कैश भी लिखा है, श्याम भी लिखा है, यानी गिवर का नाम भी है एंड व्हाट गोज ये भी पता है। एंड यू नो वेरी वेल, गिवर को भी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, व्हाट गोज को भी क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहां कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम फॉर कैश रुपीज 10,000, मैंने श्याम से गुड्स खरीदा कैश में। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट इस बात का हो गया कि गिवर इज ऑल्सो गिवन एंड द व्हाट गोज इज ऑल्सो गिवन, यानी कि पर्सनल अकाउंट का भी रूल गिवर के अकॉर्डिंग क्रेडिट होना चाहिए और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए, कैश को क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि श्याम को क्रेडिट करें कि कैश को क्रेडिट करें। लेकिन आपको पता है कि यू आर अ गुड अकाउंटेंट, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अब आप खुद जज करो, श्याम से हमने सामान खरीदा, इट इज इंपॉर्टेंट, कि मेरे पास से कैश गया, इट इज इंपॉर्टेंट। आप खुद थिंक करो कि आपके पास से 100 रुपए चला गया,
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके पास गया, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मेरे पास से क्या हुआ, पैसा गया। सो दैट्स वाई वी राइट डाउन दी कैश अकाउंट इन द क्रेडिट साइड, दैट इज द परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो इसी तरह से आप घर पे भी कुछ क्वेश्चंस लीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप कि यू विल discuss all the practical problem related to the accounting equation and please solve all the practical questions given in book. And if you have any doubt regarding the any kind of the question which are given in your exercise, so please ask me. Okay, so आज के लिए इतना ही, thank you, thanks a lot and bye bye.